Now we will see types of reactions. Chemical reactions basically according to change in those reactions. They are classified into 5 categories. First, combination reactions. Second, decomposition reactions, displacement reactions and double displacement reactions. After that, we will see oxidation reduction, or we may call them redox reactions. These 5 major categories of reactions we have to study. As name shows that combination reaction. Combination means combination of two, combining, joining. So in these examples, we will see that 2 different elements or compounds are reacting and giving a simple one product. So this type of reactions are called combination reactions. Means reactants are just combining. They are not evolving any gas or they are not releasing any other compound. Decomposition reactions in which, as name implies, what we see that decomposition of reactant will occur. We will take a big molecule and after reaction it will get decomposed and we will get 2 or more than 2 compounds. In displacement reaction, what will happen? The part of a molecule will get displaced. And in double displacement, displacement will happen twice. Means 2 parts of reaction or 2 reactants, one part of both reactant will get displaced. So these are called double displacement reductions. Oxidation reduction or in redox reaction, what we will observe that oxidation state of an element will change. Of one element it will increase and for other element it will decrease, because they happen always simultaneously. In the same reaction, one element will get oxidized, so other will get reduced. It is not possible that you may have a reaction only for oxidation or you may have reaction only for reduction. That will called only half reaction. But in a complete reaction, you will find that reduction and oxidation occur simultaneously. Now we will study one by one each category of reactions. It is first category of reactions, combination reactions. What are combination reactions? 2 or more elements or compounds react together and give a single compound as a product are called combination reactions. And these are the examples. Rather, you can write many examples from your book. Hydrogen and chlorine. Hydrogen is an element, chlorine is an element. Both are in gaseous state. They react with each other and they give hydrogen chloride as a gas. Barium solid, oxygen gas reacts with each other and give barium oxide as a solid compound. Carbon in nature it is occurred in solid state. It reacts with oxygen gas and gives carbon monoxide gas. Here I have mentioned half. I could write single oxygen also, but because in nature you will find oxygen as O2. That's why I have written oxygen, but I am using half of that oxygen molecule. Or what could I do? I could write 2 here and I could write 2 here also. Again it is balanced chemical equation. So this way chemical reactions are written. This is carbon monoxide in gaseous form. Carbon monoxide is a compound. This compound again can react with elemental oxygen. Again I have written half oxygen, or you could write 2 here and here you can remove half. So carbon monoxide again on reaction with oxygen gives carbon dioxide. So this is again a combination reaction. In these reactions, 2 elements were combining, but in this reaction, one compound is combining with element. Next,
This element calcium is combining with oxygen gas and giving calcium oxide. This is a compound. This is a compound. So both compounds in this example you will see two compounds are combining each other and they are giving calcium carbonate. So this is solid, this is gas, and calcium carbonate again is a solid compound. In this reaction, hydrogen and oxygen both are elements, they are combining and they are giving water vapor. Vapor means in gaseous state. But liquid vapor means you convert vapor into liquid and you react with quicklime. This is also called quicklime or calcium oxide. This is a compound. Calcium oxide is a compound. Water again is a compound. Both compounds are reacting and they are giving another compound, calcium hydroxide. So this way in combination reaction you will see that two or more either elements or compounds or elements and compounds are combining and they are giving a single compound. These reactions are called combination reactions. Here I am giving you one example of chemical equation. This is hydrogen. On reaction with chlorine, it gives HCl, hydrogen chloride gas. In this, we can easily observe that there are two atoms of hydrogen, two atoms of chlorine are reacting and they are giving again two hydrogen and two chlorine atoms. It means during reaction, number of atoms remains same because I have written already balanced equation. So what is changing? During chemical change, what is happening? There was a bond between hydrogen and hydrogen and another bond was between chlorine and chlorine atom. Now both are broken. दोनों bonds टूट गए हैं and new bonds are formed. How many? Two. Hydrogen and chlorine. Between hydrogen and chlorine. One, again hydrogen and chlorine. Two. It means you are breaking two bonds. One between hydrogen and hydrogen, other between chlorine and chlorine. And you are forming two new bonds between hydrogen and chlorine. And all bonds have definite energy. When this bond will be broken, what we will see? हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. We have to supply some energy. We have to apply some energy here also. But during formation of bond, energy is released. So now we have to calculate how much energy we are supplying. Suppose delta 1 and how much energy is getting released. If both energies are equal, then there will be no change in energy at all. But if delta 1 is greater than delta 2, means whatever energy you are supplying is greater than the energy released, then it means you are supplying some energy is getting consumed in this reaction. So these reactions are called endothermic reactions. And if the amount of energy supplied is less than amount of energy released, means during reaction what you will observe that along with product some energy is also getting produced. So these type of reactions are called exothermic reactions. In exothermic reactions, energy released, and in endothermic reactions, energy consumed. Okay, so what are the examples of exothermic and endothermic reactions? On burning methane, this is methane. Burning methane means it is reacting with oxygen. We are getting carbon dioxide and water plus heat. Means any fuel, methane is also a fuel. Why we call these molecules as fuel? Because they supply us energy. So burning of any fuel is always an exothermic reaction. Burning of wood, burning of charcoal, burning of paper, burning of plastic, anything when it gets burns. So we will always get energy, and these reactions are called exothermic reactions.
Respiration. During respiration, we inhale oxygen, we exhale carbon dioxide. But what does oxygen do? Oxygen reacts with oxygen. First it reaches to our blood, then it reacts with glucose and it gives carbon dioxide and water plus heat. And with the help of this energy only, here oxygen is burning glucose. So burning means getting energy, and with this energy only we are able to do our day to day life activities. जो भी हम करते हैं हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए. I am teaching, I need energy. You are listening, you also need energy. Whatever you do, for every task we need energy. And from where we get energy? We get energy from whatever we eat. And burning of that food, we need oxygen. So this respiration reaction is also an example of exothermic reaction. Waste material, it gets decomposed into compost. So this process also releases energy. That's why it is called an example of exothermic reaction. What are the examples of endothermic reaction? When nitrogen gas react with oxygen and gives nitrogen oxide. In this reaction, you will observe that you have to break 3 bonds of nitrogen, 2 bonds of oxygen, this one, and you will make 2 bonds in each molecule. So ultimately, you are breaking 5 bonds. Nitrogen, oxygen, and only 4 bonds are newly formed bonds are 4. So in this you have to supply more energy. That's why it is an example of endothermic reaction. Next, reverse of photosynthesis. Reverse of respiration, that is photosynthesis. In respiration we burn carbohydrates or glucose, and in photosynthesis we synthesize carbohydrate from carbon dioxide and water molecule. And this reaction happens in plants, in every green plant, because green leaves have chlorophyll as a catalyst, sunlight from sun, and they consume energy from sun and they give glucose and oxygen gas. You can mention their states also. In your notebook you have to mention the state of each and every reactant and product. So these are the examples of exothermic and endothermic reactions. These are the examples of decomposition reactions. As its name indicates, that in these reactions something will get decomposed. Means we will take one molecule or one substance. It will get converted into either 2 elements or 2 molecules or 2 other compounds, element or compound likewise. Means you are taking compound, it may get converted into 2 elements or 2 compounds, small compounds, or elements and compounds, because this is the reverse of combination reaction. What we were doing in combination reaction, we were taking either 2 elements or 2 compounds or element plus compound, and they were combining and they were giving compound. Here we are breaking that compound, and for this breaking we need energy also. Mostly जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है. देयर आर वेरी फ्यू रिएक्शंस which are decomposition reactions and energy is also evolved. So decomposition reactions में if we are providing thermally energy, then these reactions are called thermal decomposition reactions. Secondly, if this decomposition is happening in presence of sunlight, then this reaction is called photochemical decomposition. And if this decomposition is happening electrolytically, then this reaction is called electrolytical decomposition reaction. These are the examples of decomposition reaction.
Here I have taken ferrous sulfate, which is also called as green vitriol. And the formula of green vitriol is FeSO4.7H2O. Here 7H2O are water of crystallization. On heating, it gets converted into ferric oxide plus sulfur dioxide, sulfur trioxide, and water molecules will come out from the crystal. In this reaction, you can observe that one compound, one molecule is breaking into 1, 2, 3, 4 simple compounds. So this is a type of decomposition reaction, and because we are providing energy, that's why it is called thermal decomposition. And in this reaction, we may observe the order of burning sulfur also, because sulfur is getting converted into sulfur dioxide and sulfur trioxide. Another example is calcium carbonate. Very important, very significant example. Calcium carbonate on heating gives calcium oxide, quicklime, and carbon dioxide. This quicklime is used in cement industry, and you can imagine the significance of this quicklime because it is mixed in the formation of cement. Next, ammonia. Decomposition of ammonia. Decomposition of ammonia gives nitrogen gas and hydrogen gas, and it also involves thermal energy. Similarly, I can take lead nitrate. Lead nitrate on heating gives lead oxide plus nitrogen dioxide and oxygen gas. Nitrogen dioxide on heating gives nitrogen and oxygen gas. Similarly, I can do one activity also. I have taken one plastic beaker, and through these two holes I have put two graphite rods as electrode, and I have connected both rods with 6-volt battery. Now I have inverted two test tubes over it filled with water. कि मैंने क्या किया, इन दो रॉड्स के ऊपर पानी में, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें वाटर भरा, इसको ऐसे बंद किया और इन्वर्ट करके इसको क्या किया, ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर रख दिया. सिमिलरली अदर को मैंने, जो दूसरी मेरी कैथोड, जिसको मैंने कैथोड बनाया, एक को एनोड, तो उसके ऊपर भी मैंने उसको रख दिया. अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इस वाटर में, जो मैंने यहाँ वाटर डाल रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा H2SO4 भी ऐड कर दिया. वाई? बिकॉज H2SO4 से जो इसका इलेक्ट्रोलिसिस है वो थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है. अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो वाटर है उसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है. जैसे मैंने लिया वाटर, वाटर इजीली कन्वर्ट होता है किसमें, H प्लस एंड OH माइनस में. और आप कह सकते हो ये जो कैटायन है ये किसके ऊपर जाएगा, कैथोड पे. और जब ये कैथोड पे जाएगा, बिकॉज दिस इज अ सिंपल वे टू रिमेम्बर, कैटायन गोज टू कैथोड. सो ये कैटायन है, ये कैथोड पे जाएगा और व्हाट विल इट डू, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन. Next, this hydrogen again will react with other atom of hydrogen and it will give hydrogen which will be collected on this electrode. After some time, you will see some air bubbles are coming and water is getting displaced, and you will see some amount of hydrogen gas in this test tube. In next electrode, at this electrode, what will happen? Oxide ions. Because OH ion will get converted into like this, O minus to and H plus. Oxide ions will go to anode. You can say anion goes to anode. So this is the very simple way. Cation goes to cathode, anion goes to anode. O minus 2, it will release 2 electrons or it will give 2 electrons to anode and get converted into oxygen. Oxygen again reaction with oxygen produce O2. So likewise on this electrode also we will get some amount of oxygen gas over this water. So what will be the ratio of these gases? Because hydrogen has 2 atoms and water molecule has 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So their ratio will be 2:1.
Suppose this is 2 ml, it will be only 1 ml because the number of atoms in water molecules are 2:1. Therefore, similarly, I have taken another activity. This is a china dish in which I have taken silver chloride. Silver chloride is a white powder. If I put this china dish in sunlight, direct sunlight, it get converted into grey powder. Why? Because AgCl, white powder, takes energy from sunlight and get decomposed into silver and chlorine gas, and the silver is greyish in color. If I put instead of silver chloride AgBr, it also breaks into silver and bromine gas. I will have to take 2 likewise. So silver bromide is light yellow in color, and after putting in sunlight it will again converted into grey powder. So these are the examples of photochemical decomposition. Third category of reactions is displacement reactions. Displacement reaction में as its name indicates that something will get displaced. अब वो something में कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है. जनरली बुक्स में क्या कर रखा होता है, ओनली कैटायन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को दिखा रखा होता है. तो देखो, इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करें. अब ये सीरीज क्या है? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड. इस सीरीज में टॉप टू डाउन क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. अब रिएक्टिविटी डिक्रीज का सेंस क्या है कि अगर हमने ऑलरेडी गोल्ड का कंपाउंड ले लिया और उसका हमने सॉल्यूशन ले लिया और उसमें हमने इसमें से कोई सा भी मेटल डिप कर दिया, तो क्या होगा? गोल्ड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. गोल्ड का कैटायन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा मेटल की फॉर्म में, और ये अपने आप को कैटायन में बदल लेंगे. देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आपकी एक्टिविटी है बुक की, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट रिएक्शन ऑल्सो. यू हैव टेकन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एक टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं. वेयर इज कॉपर? एट दिस प्लेस, हाइड्रोजन के नीचे. अब कॉपर इसमें कौन सी फॉर्म में है? +2 फॉर्म में है. आपने आयन की नेल को डिप किया. आयन कहाँ है? इससे ऊपर है. तो जो ऊपर वाली जिसकी पोजीशन अप है वो अपने से नीचे वाले कैटायन को क्या करती है? डिस्प्लेस कर देती है. अब ये आयन क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद बन जाएगा Fe+2, और इसके साथ सल्फेट था तो वो सल्फेट खुद ले लेगा और कॉपर मेटेलिक फॉर्म में आ जाएगा. क्योंकि जब हम आयन की नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, बिकॉज आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसमें और कॉपर में कंपटीशन होगा, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसी की चलेगी. क्या होगा? आयन सल्फेट को ले लेगा और कॉपर को आउट कर देगा. तो इस तरीके से जिनकी पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है, दे ऑल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो अगर आप कोई सा भी हाइड्रोजन का सॉल्यूशन लो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि HCl एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, उसमें आप इसमें से कोई से भी मेटल आप डाल दो तो ऑल विल, जैसे मैंने कैल्शियम लिख दिया, व्हाट विल हैपन? कैल्शियम क्लोराइड ले लेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. तो इसका कैटायन क्या हो गया? बाहर निकल गया और ये कैटायन की फॉर्म में अंदर आ गया. तो यहां देखो, कॉपर सल्फेट में से कॉपर कैटायन मेटल बन के बाहर आ गया, आयन अंदर चला गया सॉल्ट के अंदर. सेम वे में आप n नंबर ऑफ रिएक्शंस लिख सकते हो. आपने लिया सोडियम और सोडियम की रिएक्शन आपने करा दी मैग्नीशियम सल्फेट से, बिकॉज मैग्नीशियम की पोजीशन नीचे है
तो क्या होगा, मैग्नीशियम आउट और सोडियम इन, सॉल्ट के अंदर चला गया। हम इसको बैलेंस कर देंगे सेम वे में। इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम जिंक की ले सकते हो, आयरन लेड की ले सकते हो। जैसे मैंने आयरन लिया और PbSO4 लिया, व्हाट विल हैपन, आयरन अंदर चला जाएगा, आयरन सल्फेट, और Pb बाहर आ जाएगा, इस तरीके से। तो आप कोई से भी एग्जांपल, यानी कि लिथियम को आप लेंगे तो लिथियम सबको डिस्प्लेस कर देगा, पोटेशियम इन सबको डिस्प्लेस कर देगा। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल में से, ये एक मॉलिक्यूल था, इधर कैटायन और एनायन डिस्प्लेस हो जाता है और दूसरा आ जाता है, सल्फेट के साथ आयन आ गया। अच्छा, अब मैं आपको सिल्वर के कंपाउंड्स की रिएक्शन बताती हूँ। आपने लिया सिल्वर आयोडाइड और इसमें आपने ब्रोमीन डाल दी, व्हाट विल हैपन, ये क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये आयोडाइड को डिस्प्लेस करके आयोडीन की फॉर्म में और खुद क्या बना देगा, AgBr। तो अब यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव आयन डिस्प्लेस हो गया, लेकिन एक ही हुआ है, दूसरा जो है एलिमेंटल फॉर्म में आया है। इसमें से कैटायन वही रहा, एनायन चेंज हो गया, इसमें एनायन वही था, कैटायन चेंज हो गया। अच्छा, आप AgBr लो और उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दो, व्हाट विल हैपन, AgCl प्लस Br, यानी कि आपने AgBr का सॉल्यूशन ले रखा है। व्हाट विल हैपन, AgBr के सॉल्यूशन में जब आप क्लोरीन गैस पास करोगे तो ब्रोमीन जो है एज ए ब्रोमाइड जो है एज ए ब्रोमीन बाहर आएगी और आपको इसका कलर कैसा मिलेगा, ब्राउन। तो इसने क्या किया, ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, है, के, ना, कार, मांगी, एल्टो, जन, फिर सन, प्रभु, है तांबा, हो गया चांदी, सोना। इस लाइन को अगर हम 5-7 टाइम्स लिख के याद करें तो क्या होगा, हमें इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। अब इसमें ध्यान देना है कि जितने भी एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन हैं, दे ऑल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। जैसे हमने एसिड का सॉल्यूशन ले लिया और इसके ऊपर वाली किसी भी एलिमेंट को हमने यहाँ रखा, मेटल को, तो वो इसमें से H+ को डिस्प्लेस कर देंगे एज ए H2 और खुद क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे। मैंने 4 का एग्जांपल दिया है, आप यहां से कोई सा भी ले सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफरेंट बट द रिएक्शन विल बी सेम। अगर हम जिंक और कॉपर सल्फेट को देखें तो देखो, कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे, और जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर। तो नेचुरली जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद सॉल्यूशन में आ जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को हम कंसीडर करें तो मैग्नीशियम ऊपर है इसका पोजीशन, एल्यूमिनियम की पोजीशन नीचे है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स देखें, दे ऑल आर रिलेटिवली इनर्ट। जैसे हम देखते हैं सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, ये ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं। और अगर हम किसी भी हाइड्रोजन एसिड के सॉल्यूशन में, यानी कि एसिड्स के सॉल्यूशन में इन मेटल्स को डाल दें जिनकी पोजीशन इससे नीचे है, दे नेवर डिस्प्लेस हाइड्रोजन, रादर इनके सॉल्यूशन में अगर हम, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें हाइड्रोजन डाल दें तो हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, यानी कि एसिड बन जाएगा और कॉपर विल गेट डिस्प्लेस। सिमिलरली मरकरी में, मरकरी सल्फेट में से मरकरी डिस्प्लेस हो जाएगा, और अगर मैंने सिल्वर सल्फेट ले रखा है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी तो हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ऑल एंड ऑल यू हैव टू मेमोराइज ओनली वन थिंग, दैट द मेटल विच इज अबव, विच हैव पोजीशन अबव इन द सीरीज और अपर इन द सीरीज, that will displace the metal which have position lower in the series. तो ये थी आपकी displacement reaction. These are the examples of double displacement reactions.
as name indicates, in this reaction there will be displacement, but displacement will be twice. तो twice में क्या होगा कि जैसे आपने लिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बोथ आर इन एक्वस सॉल्यूशन. नाउ सल्फेट आयंस हैव cation sodium plus and sodium plus have anion sulfate. Similarly, barium plus 2 cations have chloride negative ions and chloride negative ions have barium plus 2 ions. लेकिन इन दोनों की रिएक्शन से क्या हुआ कि इन्होंने अपना कैटायन और आप कह सकते हो एनायन इन्होंने एक्सचेंज कर लिया. तो अब बेरियम के पास क्या आ गया, बेरियम सल्फेट, और सोडियम के पास क्या आ गया, क्लोराइड. तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हुई है और दो कंपाउंड्स में हुई है. आप ऐसे समझ सकते हो, क्लोराइड के केस में यहाँ पे सोडियम आ गया, सल्फेट के केस में वहां पे बेरियम आ गया. और जनरली ये जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं ये उन केसेस में ज्यादा सिग्निफिकेंटली पढ़ते हैं जहां वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है. यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, और जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो बोथ आर इक्वली गुड सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन इन दोनों का जो मिक्सचर है वो उसमें से क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो कि इनसॉल्युबल है और आपको उसका प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में मिलता है. सिमिलरली अगर हम लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें, ये इसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. अगर मैं लेड नाइट्रेट लूं, इट इज कलरलेस. पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो कलरलेस सॉल्यूशन. लेकिन पोटेशियम सल्फेट जो है वो तो कलरलेस है. ये जो लेड आयोडाइड मिलता है आपको, ये कैसा मिलता है, येलो कलर का मिलता है. तो यहाँ पे अगेन आपने देखा, लेड ने अपना नाइट्रेट देके आयोडाइड ले लिया और पोटेशियम ने अपना आयोडाइड देके क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट. और जो दो प्रोडक्ट थे उसमें से एक प्रोडक्ट क्या मिला आपको, सॉलिड स्टेट में, बिकॉज तभी हम उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट. और जनरली प्रेसिपिटेट जो है रिएक्शंस मिक्सचर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए हम इसको रिवर्स एरो से, डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं. सिमिलरली निकिल क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस पास करते हैं तो हमें निकिल सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है सॉलिड फॉर्म में, और HCl गैस. तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच डबल डिस्प्लेसमेंट हैपन्स, तो इनको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट. We can understand these reactions of double displacement category in this activity form also. Suppose I have taken a test tube in which I have taken lead nitrate solution which is colorless. अब इस कलरलेस सॉल्यूशन में अगर मैं कलरलेस KI का सॉल्यूशन ऐड करती हूँ तो क्या मिलता है, लेड आयोडाइड का येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है, हमें प्रेसिपिटेट मिलता है. और इसी प्रेसिपिटेट के कारण इसका कलर क्या होता है, येलो हो जाता है. नेक्स्ट अगर मैं सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिक्स करूं किसमें, बेरियम क्लोराइड में, तो बेरियम क्लोराइड इज ए गुड सॉल्युबल इन वाटर. और सिमिलरली सोडियम सल्फेट भी दोनों ही कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है. अगर इन दोनों को हम मिक्स करें तो हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, बेरियम सल्फेट, जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. तो जैसे जैसे आपने डाला तो आपने ऐसे नहीं देखना कि हमेशा सोडियम सल्फेट ही डालना है. अगर आप H2SO4 भी लेंगे तो भी क्या होगा कि वो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन के पास कौन आ जाएगा, क्लोरीन. तो साइड प्रोडक्ट NaCl की जगह क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा. तो यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों अपनी अपनी पोजीशन क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं. सिमिलरली अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लूं विच इज गुड सॉल्युबल इन वाटर, और अगर मैं HCl लूं और उसको ऊपर से मिक्स करूं तो मैं क्या देखती हूँ, AgCl मिलता है, दोनों का कैटायन एनायन एक्सचेंज हो जाता है, साथ में HNO3 मिलता है. मैं यहाँ HCl की जगह क्या ले सकती थी, NaCl. तो भी ये क्लोराइड क्या करते हैं, सिल्वर से रिएक्शन करते हैं और आपको क्या दे देते हैं, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट. और अगर मैंने यहाँ पे NaBr लिया होता तो मुझे यहाँ किसका प्रेसिपिटेट मिलना था, सिल्वर ब्रोमाइड का, जो कि लाइट येलो कलर का होता है. और अगर मैं सोडियम आयोडाइड ले लेती तो मुझे यहाँ AgI का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो दिस वे हम क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को याद करते हैं. ओके, तो दीज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. Next and very important class of reactions is oxidation reduction reactions. Oxidation reduction reactions को हम redox reactions भी कहते हैं. Why? क्योंकि इसमें हमने क्या किया, रिडक्शन और इसका ऑक्स ले लिया और ये बन गया रिडॉक्स. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जब भी आप रिएक्शंस देखेंगे ये हमेशा साइमल्टेनियसली होती हैं. अगर एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है. हालांकि एट दिस लेवल
आप अपनी इस क्लास में हो सकता है इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ना करो कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बट वन ऑफ द वे इज ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या उसमें से हाइड्रोजन चली जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो डिफाइन ऑफ ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द रिवर्स ऑफ दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां इसको आप एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करो कि कॉपर व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, आप कोई कॉपर का कंटेनर लो, कोई भी वेसल लो, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट इट्स पॉलिश इज गॉन एंड नाउ इट इज ब्लैक इन कलर। तो वो ब्लैक कलर या डार्क रेड सा कलर क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अब अगर इसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास करें तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगी, इसके पास चली जाएगी और ये बन जाएगा H2O। तो हम इसको कहेंगे इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था कॉपर का, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ कौन है, ऑक्सीजन जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन जो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन की रिएक्शन कराती हूँ, जो आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, तो उसमें क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आयन की रस्टिंग होती है, कोरोजन जो हम पढ़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हम क्या देखते हैं, आयन ऑक्साइड बन जाता है। तो अगेन आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ आयन। सिमिलरली अगर आप वेजिटेबल ऑयल लेते हो, अब वेजिटेबल ऑयल का जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं और वो सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल यानी कि घी बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। वाई, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये मैंने अभी आपको हाफ रिएक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन अगर हम जॉइंट देखें तो क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड। आपने अभी पिछले टॉपिक में देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई मैंने, तो उसमें जिंक का प्लेस क्या था, ऊपर था। तो जिंक क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन ऑक्साइड को ले लेगा और क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो अल्टीमेट क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। और किसने किया, कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जब वो किसी और का ऑक्सीडेशन कर रहा होता है, उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। तो इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो आप ये समझ सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो किसने किया, जिंक ने किया। तो जिंक क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने देखा दोनों रिएक्शंस क्या चल रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन। यहां मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ देखो कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कैटायन में। जो आगे लिखा जाता है वो क्या होता है, कैटायन। तो न्यूट्रल स्पीसीज से कैटायन का फॉर्मेशन, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से जब कैटायन बनता है, क्योंकि ये आगे लिखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। वो कब बना होगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया होगा। तो अभी आप इलेक्ट्रॉन्स की टर्म को हल्का सा समझ लो कि जब ये न्यूट्रल कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर आप क्या करें, कोई रिवर्स रिएक्शन देखें, जैसे मैंने लिया क्लोरीन और क्लोरीन से बना दिया क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम से कराई, तो ये बन गया आपका NaCl, Na पॉजिटिव Cl। तो Na का यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कैटायन बन रहा है। और क्लोराइड का क्या हुआ है,
एनायन, क्लोराइड एनायन में कन्वर्ट हुआ है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना, तभी तो ये एनायन बना। तो इसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम, अगर आप इन दो के साथ छोटी सी ये डिफाइन और याद कर लेते हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखो, न्यूट्रल से कैटायन बनना ऑक्सीडेशन, न्यूट्रल से एनायन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हुए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इस वे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हम और देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के। कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए, जिंक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड जिंक। तो इसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान दो कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन अगर निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, रिडक्शन। तो ये क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन। लेकिन वो कार्बन में ऐड हो रही है, तो इट मीन्स कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ कार्बन इसको रिड्यूस कर रहा है, तो कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिंक ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, यहीं पे आप छोटी सी नोटिस और करो कि जिंक के ऊपर कितना चार्ज था, +2, और यहाँ जिंक पे कितना है, 0। तो आपने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज हो गया रिडक्शन से, तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, यहाँ पे इसके ऊपर 0 चार्ज है, लेकिन दो ऑक्साइड, एक ऑक्साइड पे -2, दो पे कितना होगा, -4। तो इट मीन्स इस कार्बन पे कितना है, +4। तो देखो, प्लस चार्ज में इंक्रीज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और प्लस में अगर कम हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफाइन को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल अच्छी बात, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर ऑक्सीजन की जगह क्लोराइड भी जुड़ेगा तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। या फ्लोरीन जुड़ जाए या सल्फर जुड़ जाता है किसी एलिमेंट से, तो हम, क्योंकि वो ऐसे एनायन जुड़ेगा तो उसके ऊपर कैटायन पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन, क्लोरीन का एडिशन, फ्लोरीन का एडिशन, सल्फर का एडिशन, या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या उसमें से हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। हाइड्रोजन के अलावा जैसे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, इनका लॉस भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब वो कैटायन बनाएगा, ये देखो कार्बन से कार्बन +4 बन गया, तो ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ कार्बन 0 से प्लस चार्ज हो गया, एक ही बात को हम डिफरेंट वे से कह सकते हैं। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बताओ, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अच्छा, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन है, तो डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में मैग्नीज ऑक्साइड है, HCl से रिएक्शन करके MnCl2 2H2O क्लोरीन दे रहा है। यहां ध्यान दो, मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है, +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो पे कितना होगा, -4। इट मीन्स मैग्नीज यहाँ कौन सी स्टेट में है, +4 में है, +4। और ये आपने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सारे हाइड्रोजन क्लोराइड कौन सी स्टेट में, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड -1। तो यहाँ आपने लिए 4 HCl ले लिए, तो 4 में से 2 क्लोरीन क्या होंगे, Cl2 में चले गए, 0 में चले गए, तो इनका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, -1 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो, -1 से 0, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये इनका हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब मैग्नीज +4 से +2 में चला गया, क्योंकि एक क्लोराइड पे -1, 2 पे -2, तो मैग्नीज पे यहाँ कितना है, +2। मैग्नीज वही है, लेकिन यहाँ +4 स्टेट में, यहाँ +2 स्टेट में है। तो क्या होगा, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन है, तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिडक्शन। तो ये देखो, यहाँ डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो दिस वे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस
क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं, इसलिए हम इनको रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। और आप सिर्फ एक डिफाइन याद ना करके ये सारे डिफाइन याद करेंगे तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। और इसका रिवर्स क्या होने वाला, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, या क्लोराइड का लॉस या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लॉस क्या कहलाता है, रिडक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन है तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिडक्शन। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन है तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रिडक्शन। जैसे अगर आप O-1 से O-2 बनाते हो तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेचुरली इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इलेक्ट्रॉन लेना मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन। तो दिस वे हम सारी डिफाइन अगर थोड़ी सी उससे याद कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है पर हमारी 100% गारंटी हो जाती है कि हम रिडॉक्स रिएक्शंस के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप इन माई कमेंट बॉक्स ऑल्सो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।